Satyamani Das, on behalf of Gujarat Refinery Officers Club, welcome you all to today's session on one of the oldest classical dance forms of India, Bharatanatyam. We are very happy to have among us one of the stalwarts of this art form, Dr. Guru Sharad Pandya. I also welcome two eminent dancers in this field, Neeru ma'am and Rashmi ma'am. Bharatanatyam is a blend of expressions, melody and rhythm. It is the combination of three elements, Nritta, Nritya and Natya. Nritta means pure dance, a presentation of rhythm through graceful movement of the body. It always reflects the mood, bhava and rasa underlying the compositions sung for the dance. Nritya gives emphasis to dance postures and body movements and consists of footwork and abhinaya. Natya is the combined manifestation of bhava, rasa and abhinaya. It involves storytelling through dance and music and abhinaya. Done with complete concentration, this dance form is as good as yoga. We should try to learn such dance forms and preserve our Indian culture. It has many health benefits too, like it increases aerobic fitness, improves body flexibility and balance, improves concentration, builds endurance, controls weight, beneficial for the heart and even detoxifies our body and mind. Today we are going to have a demonstration of this dance followed by interaction with Guruji. The sole motive of this session is to introduce this dance form to Gujarat Refinery fraternity and create an opportunity to learn from the internationally acclaimed Guru. It is said that when the student is ready, the teacher appears. I hope this will be that day for you. Now I request our club secretary Mr. Vishwan will facilitate our Guruji. Cultural Club Secretary Mr. Bala will felicitate Neeru ma'am. Ma'am, please. And I will be felicitating Rashmi ma'am. I would like to mention कि मतलब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ठीक है ये गैदरिंग कर रहे हैं देन इसके बाद क्या. So till now we have received names of 5 interested candidates, 6. So the numbers are increasing gradually. So if we have quite a good number like 15 to 20 or minimum 15, then we can think of conducting the classes here itself in our club. So at the end of the session also, you are those who are interested or even thinking of starting this art form may submit their names to us, like Bala or Vishwant or me. So I will now hand over the stage to Rashmi ma'am for introducing our Guruji. Thank you. Thank
very good morning and a warm welcome to today's program. It is always a pleasure to come and meet members of the society who are interested in Indian classical dance. We've been touring several places, so within India as well as abroad. So I myself am a performer, and we performed along with Guruji to several countries. What we see is on an international platform, people are very, very appreciative of Indian classical dance. The simple reason being, it's a very scientific way of dance. I'm sure during your interaction, when you speak with Guruji, you will come to know a lot of things about it. But I can tell you, you are seeing someone who has seen immense benefit of dance throughout her life. Right from how you look at things to how you recover from adversities. A lot of things are there, and you learn a lot through this dance. Today I'm going to introduce Guruji. I have a big introduction, but I'm just going to pick a few so that you at least know who you are interacting with. And all those who feel that you have an interest, I can guarantee you, when you look at this, the way it is taught, the way dance is taught, children have a complete change about it. There is a roundabout in the way in which people or children respond to how the teaching happens here at Guru. There's a lot of discipline. Can I keep this aside? Can you hear me? I'll just keep this aside for me. So there's a lot of discipline that is there. There's a lot of interaction that happens, and we see that mentally as well as physically, it helps, especially the students, to adjust to the challenges today in today's world, right? Because we see more and more stress coming up, and because we see so much pressure that the students feel. But science also says if there is an outlet, physical outlet, then mentally also you are relaxed. And that's what we, all of us, feel during, we've seen this. So I've been associated with Purva since now more than 35 years. And I've performed for around 25 years. And I see a massive difference in myself and how I deal with stress, because it helps a lot. Unfortunately, I'm not dancing anymore, but definitely that still stays with me and it helps throughout the life. So I hope you are able to encourage your children and people you know to be a part of Purva, because it is a wonderful journey, I'm sure. So giving you a little introduction about Guruji Shri Sharad Pandya. He is born and brought up in Gujarat. He is one of the very few male dancers of Bharatanatyam style of classical dance. Although there is an impression that when you learn an ancient culture or ancient art form, you become that way. It's not that. He's a very forward-looking person. So there is a beautiful merge of someone who's learned traditional dance and art form, and still he has a very modern outlook towards life. And that's what we have experienced in our association for years together. So Guruji has been honored with National Nritya Award, National Kamarupa Award, Sanskar Award, Outstanding Young Personality Awards, and several others. So I'm just giving a concise introduction about what we know him as an individual and as a connoisseur of art. He's actually toured around the world. He's traveled to several countries. I can say almost everywhere we've seen him travel and represent India as the ambassador of Indian cultural art. He's been to Indonesia, Thailand, Cambodia, Vietnam, Laos, United States of America, Russia, Pakistan, which is a rare sight, but fortunate that we've been able to go thrice to Pakistan, twice to United States of America, Brazil, Mauritius, so many places that we have been to, Sri Lanka also, so many places we have been to, and everywhere we have gone, we've received a lot of appreciation and a lot of respect as artists of Indian classical dance. So he has made a lot of presentations. He's also a choreographer, he's also a performer, he's a guru. We call him a guru because he truly is that. Now when we talk about Guruji Shri Sharad Pandya, he is a member of International Council of Dance, CID UNESCO Paris, and World MIFA Italy, United Religions Initiative URI Bangalore too. And
when you talk about him as a choreographer, he's choreographed several dances and dance dramas which have got internationally critically acclaimed. So we've actually traveled with this, as performers we've traveled along with Guruji, and we see the kind of acceptance is beyond words. It's very difficult to explain. So his choreography basically have been ballads like Mahishasur Mardini Stotram, Nal Damayanti, Krishna Leela, Prakruti Varnan. He's also choreographed from Indian scriptures such as Hanuman Chalisa, Radha, Ram Ravana, Ramcharitmanas, Vaishnava Janato, and many others. So he has trained students. There are students traveling from abroad. There are students traveling from Russia, Brazil, USA, France, Austria, Spain, Mauritius, who have actually come to Baroda, stayed here for a few months every year, and they have learned dance from Guruji. So the best part is that when we see them coming here, they are here only for 2 or 3 months, but they make a lot of progress because that is the only intention of visiting. And amongst so many people who teach dance, they feel it is better to come here and study, because we have seen the way it is taught. That, you don't wait, or you don't stop yourself from giving. It is available. You take away as much as you can. So it depends on your capacity as a student. When we talk about hosting festivals, Vadodara has been hosting, Purva has been hosting International Festival of Classical Dance, a very beautiful format where artists from across the world and artists from across nationalities who are performing Indian classical dance, who are practicing Indian classical dance, they have come here and they have performed Indian classical dance. So we have a mother-daughter duo from Russia. They are Russians basically, and they've performed beautiful Bharatanatyam dance here. There have been someone from Japan, she's performed Kathak here. Then someone from Brazil, an entire troupe which comes and performs Odissi, and it is really mind-blowing to see how much respect they have. In fact, they are bound by, they actually are very bound by the Indian traditional culture and art form. Okay, so we see them much more strict in following the ways of life when they are actually into this dance form. Okay. Guruji has also started several unique initiatives. One is the dance drama, another is the Purva Shri Award. So that's okay. The Purva Shri Award is awarded to people who are connected to art field in one or the other manner. Several times what you see on stage, or the people that you see on stage, are the ones who are felicitated. They are the ones who have always got stage. But he has actually understood that in the back end there are several people who work to make any one program unique. So it might be 2 hours or 3 hours that you see the artist and they get all the kind of spotlights, but there are people who have been working tirelessly for hours together or days together to make the production successful, and those people are felicitated through these awards. So that is again something unique. I think if you ask me, the entire 3 hours or 2 hours I can take up, but I don't want to do that. So I'm going to stop the way I would want. I just introduce the way I would want my Guruji to be introduced, and that's it. Thank you so much. Namaste everyone. If I speak in Hindi, is it okay? Or should I go in English only? Okay, fine. तो आज आप जो देख रहे हैं, हमारा उद्देश्य आज ये है कि हम अधिकतर जब देखते हैं प्रोग्राम्स, इट्स ऑलवेज फाइनल प्रोडक्शन जो स्टेज पर होता है, जहाँ लाइट्स, कॉस्ट्यूम, मेकअप, ऑर्नामेंट सब कुछ होता है, पर कभी हम किसी भी चीज़ का प्रोसेस नहीं देख पाते हैं। तो कैसे सीखते हैं, कितनी मेहनत लगती है और कितनी घंटों और महीनों और सालों का रियाज करने के बाद यू बिकम वन गुड आर्टिस्ट बन सकते हो। तो वो जो प्रोसेस है वो हम दिखाना चाहते हैं। बहुत बार आपने टीवी में या यहाँ प्रोग्राम में देखा होगा लाइव ऑन स्टेज, तो वो फाइनल प्रोडक्ट होता है, बट व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो जिसको हम कोई भी भाषा अगर लेते हैं तो भाषा में अल्फ़ाबेट्स, उनके मूलाक्षर, वो सबसे पहली बात होती है कि उसको सिखाया जाए, जैसे ABCD, क ख ग छ छ ज ऐसे। अभी आज जो हम दिखा रहे हैं
वो भरतनाट्यम की सरल भाषा में अगर मैं कहूँ तो बेसिक मूवमेंट ऑफ भरतनाट्यम है। तो उसके बाद उसको जब जोड़ के अक्षर को जब सीखने के बाद जोड़ते हैं तो छोटे छोटे शब्द बनते हैं। शब्द को जब इकट्ठा करते हैं तो एक पैराग्राफ बनता है। पैराग्राफ को इकट्ठा करो तो इट बिकम अ चैप्टर। व्हेन यू कंबाइन ऑल 3, 4, 5, 6, 7, 8 चैप्टर्स टुगेदर देन इट बिकम अ बुक। तो बुक बनने के लिए सबसे उसका बेस क्या है? 1 लेटर। तो वो सीखना ज़रूरी है। तो आज हमारा कंसेप्ट ये है कि आपको हम ये दिखाएं। फाइनल प्रोडक्ट तो कहीं भी देख लेंगे, कुछ नहीं तो टीवी में देख लेंगे, और आजकल का तो ट्रेंड है यूट्यूब डालो सब देखने मिलेगा। और उसमें सही होता है या गलत होता है वो तो हमारे जैसे जो जानकार लोग हैं उनसे पूछो तब पता चले, क्योंकि वो इतना एक सस्ता चीज़ हो गई है। स्मार्टफोन 20, 22, 25 हज़ार में मिल जाता है। 200-600 रुपये का ट्राइपॉड मिल जाएगा, रख दिया, परफॉर्म कर लिया, डाल दिया यूट्यूब पर। तो कभी कभी उसका गलत इंप्रेशन भी आता है कि वो सही है या गलत है। तो हम चाहते हैं कि कभी देखो, लेकिन इतना मत देखो कि वो इम्प्रिंट हो जाए, फिर वही लगे कि यही भरतनाट्यम है, यही कथक है, कथकली। तो ये सारी चीज़ें गुरु आश्रय में, गुरुकुल परंपरा में ही सीखी जाती है और ऐसे ही सीखा जा सकता है। तो अब ज़्यादा आपसे बाद में बात करते रहेंगे हम। तो ये ऐसा था, और इसको कहते हैं आडवू। आडवू मीन्स द बेसिक मूवमेंट ऑफ भरतनाट्यम। तो अलग अलग मूवमेंट्स जो हैं हम आपको आज दिखाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा 3 या 4 शब्द के बाद, मतलब अक्षर के बाद शब्द जब बनता है वो दिखाएंगे। और उसके बाद जब आइटम में परिवर्तित होता है तो वो कैसे होता है वो हम वो दिखाएंगे। उसके बाद इंटरेक्शन कुछ करेंगे, जिसको कुछ बातचीत करनी है, कुछ पूछना है, तो सब आपसे करते रहेंगे। अंदर आओ बनना। अंतरा थोड़ा सा एक स्टेप बैक हो जाओ, और एक स्टेप आगे और आगे जगह आना छोड़ी बस ऑलमोस्ट अपनी जगह पर बिना ट्रेन कुछ भी शुरुआत होती है तो हम किसी को जब मिलते हैं या मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले प्रणाम करते हैं, ग्रीट करते हैं। तो इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म कोई भी आप ले लो, उसमें शुरुआत हमेशा एक नमस्कार से होती है। तो वो कैसे होता है? हम तो ऐसे हाथ जोड़कर करते हैं, पर नृत्य में हमेशा अलग होता है। तो नमस्कार से शुरुआत होती है। और अभी आप जो आज माहौल देख रहे हैं, आपको ऐसे ही लगेगा कि जब हम क्लासरूम में जब सिखाते हैं वही माहौल में हम हैं। इंस्ट्रूमेंट भी उसी तरह का है जो हम लोग क्लास में सिखाते वक्त करते हैं। और आपने ये जो पहना है पहरवेश, ये इसको बोलते हैं दावनी। इट इज़ एन हाफ साड़ी, इट इज़ नॉट अ फुल लेंथ साड़ी विच यू आर वेयरिंग राइट नाउ सम ऑफ यू। इट इज़ नॉट दैट, इट इज़ अ हाफ साड़ी स्पेशली मेड फॉर इंडियन क्लासिकल डांस ओनली। कुछ पहले का ज़माना ऐसा था कि स्टूडेंट को ये विविंग करना पड़ता था, खुद से साड़ी बनाना खुद से पड़ता था, वो भी सिखाया जाता था। और अभी वो तो मौका नहीं, वो समय नहीं है। तो नमस्कार से शुरुआत करते हैं। जो बेसिक मूवमेंट है उसमें सिर्फ पहले फीट वर्क होता है, फुटवर्क। और अभी हम जो शुरू करें इसके साथ फुटवर्क के साथ हैंड जेस्चर, हेड मूवमेंट, आई मूवमेंट, लेग मूवमेंट इन ऑल टुगेदर, जिसको बोलते हैं नाट्य। 1 2 3 4
फुटवर्क हो रहा है, हैंड मूवमेंट हो रहा है, हैंड जेस्चर हो रहा है, हेड मूवमेंट हो रहा है, आई मूवमेंट हो रहा है और टॉर्सो भी हो रहा है. इट कम्स टुगेदर, ऑल टुगेदर. अभी उसका हम जाएंगे नेक्स्ट. 1 2 3 4 टे ये शुरुआती सबसे सेकेंड सेट इसको बोलते हैं. जैसे ए के बाद बी आता है तो यू कैन कंसीडर दिस मूवमेंट एज ए बी. नाउ विल गो फॉर नेक्स्ट सेट ऑफ बेसिक मूवमेंट, दैट इज द ते ताम. फर्स्ट वन इन विलंबित लय. 1 2 3 4 ते ताम ते ताम ते ताम ते. और एक बार ते ताम ते ताम ते ताम ताम ते. मध्य लय ते ताम ते ताम ते ताम ते ताम ते ताम te tam and te tam te tam. So again more addition in that basic movements. Shivani Bachcha. So when we look at these movements, I would really want you to notice the angles, the lines, the balance from the hands, the mudras, and also the calculation that is happening, because you are seeing this in two speeds, right? So the beats are the same, but you are multiplying it, so the speed increases, and that's why you are seeing it within the same beats but at a faster speed. So when you notice dance, you learn, as I said, we learn everything. All these things we learn in our lives, how to balance things and how to do the calculations. So just please notice these things also, because these are minor things that sometimes we miss out. So many subjects are involved directly or indirectly, but directly involved subjects are our religious matters, stories, and mathematics also is there, and the geometry, which you are seeing that it is an all horizontal line, not like that one, something unbalanced like that. No? So that is also a part of the Indian classical dance. Now we will go for the next one. Tatte Tam. Third one, Vilambit Lay. 1 2 3 4 te tam te tam te tam te tam and te tam tam te tam te tam te. Madhya lay te tam te tam te tam and te tam tam te tam tam te tam te tam and te tam. Now we'll go for the थोड़ा इस तरफ. और शरीर के कैसे अलग अलग तरह के उपयोग हो रहे हैं, अंग उपांग और प्रत्यांग, तो अभी उसका एक और मूवमेंट आपको देखने मिलेगा. ता ते ते तक. फर्स्ट वन इन विलंबित लय. 1 2 3 4 ता ते ते त ते ते ता ते ते त ते ते ता
इसका हम तीसरा वेरिएशन सिखाएंगे। अभी जो आपने देखा सब साइड हो रहा था मूवमेंट, कभी पीछे भी जा रहा था, अभी ट्विस्ट एंड टर्न मूवमेंट भी आपने देखा। अब डायरेक्शंस भी चेंज होता जाएगा, वो भी आपको अभी यहाँ देखने मिलेगा। तो ता ते ते तक थर्ड वन, और इसको हम सीधा मध्य लेंगे। 1 2 3 4 ता ते ते तक ते ते तक ता ते ते तक ते तक ता ते ते तक ते ते तक ता ते ते तक ता ते ते तक ते तक ता ते ते तक ते तक ता ते ते थोड़ा सा एक हल्का सा किसी ने क्लैप किया तो बजा दे तो उनको भी थोड़ा एनकरेजमेंट तो जैसे होता है हमेशा सुनते हैं, एक चीज़ सुनते हैं, ये जो दिखता है वो दिखता है, और यहाँ जो दिखता है वो उतना आसान नहीं होता है, बहुत ही स्ट्रेनियस। अभी आप पास में बैठे हो तो थोड़ा पता चलेगा। इनका ब्रीदिंग देखो, स्टमक मूव कर रहा है, पंप कर रहा है। सो इट इज़ नॉट दैट इजी जितना हम आराम से देखते हैं चलो हो गया, और वो जब करें इतना हो रहा है बाबा, इतना हो रहा है। अभी ये लोग को ही पूछो, शायद ये लोग अपनी बात भी रखेंगे। थकने के बाद भी जो बाद में जो मज़ा है वो तो लोग जो करते हैं उनको ही पता चलता है। इसको हम एक सरल भाषा में बोलते हैं, एक मीठी खुजली होती है, कभी बहुत अच्छा लगता है कि हम खुजाते ही रहे। तो ये ऐसी बात है, थकने के बाद भी ऐसा होता है कि नहीं और अभी थकना चाहिए, और थकाना नहीं चाहिए, और कुछ करते रहे। तो और थकने के लिए तैयार हो जाओ। तत्ते का पहला मध्य 1 2 3 4 ऐसा कह सकते हैं हम कि अगर आप जॉगिंग में जाते हो या वॉकिंग में जाते हो तो जो पहली सांस फूलना शुरू होगा वो आपको 5 किलोमीटर के बाद होगा। फिर 2 किलोमीटर जाएंगे, चलेंगे, दौड़ेंगे, उसके बाद पसीना बहना शुरू होगा। यहाँ पर पहले ही 5 मिनट के अंदर बहना शुरू, अंदर जो आप देख रहे हैं। तो वो जो आजकल कहते हैं ना जिम में जा रही हूँ वर्कआउट, तो वर्कआउट करने की ज़रूरत है, ये इतना है। वर्कआउट भी तो होता है लेकिन साथ साथ में हम हमारे आर्ट और कल्चर के साथ भी जुड़े होते हैं। सो मेंटली, फिजिकली, सोशली, साइकोलॉजिकली क्या क्या चेंजेस आते हैं वो तो बाद में थोड़ा सा आपके साथ वो लोग शेयर करेंगे। मैं कहूँगा इसलिए नहीं, उन्होंने अपने आप पर जो अनुभव किया है, जो चेंजेस उन्होंने अपने आप में देखे हैं, ये सारी चीज़ों को लेकर वो आपके साथ शेयर करेंगे। So तत्ते कहा 4th one मध्य है 1 2 3 अभी आपने सब कुछ देखा, अभी सिर्फ फिट वर्क, ओनली पैर का मूवमेंट सिर्फ, तो आगे जाकर उसको अभिनय के साथ में उसको उपयोग किया जाता है। ये सारा तो होता ही है, लेकिन अब जो हम बता रहे हैं दैट इज थिएटर ऑल टुगेदर, सिर्फ मध्य ओनली मध्य 1। अब आप देखिए उसमें शरीर पूरा बैलेंस रहेगा, लेकिन जो फिट है पैर के पंजे है उसमें ही मूवमेंट होगी और कुछ नहीं होगा, और वो भी मैथमेटिक्स है, अलग अलग कैलकुलेशन है। मैं बोलूँ या आपको जैसे पढ़ते वैसे ही रहेंगे।
फंस गए। 1 2 3 4 टी कर कर टी कर टी कर टी कर टी कर और एक बार टी कर टी कर टी अभी आप जो एक सेट देखने जो जा रहे हैं, इट इज ऑलवेज अ कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ एनी पीस। जब होता है प्योर डांस का, तो उसको अगर आपने कभी संगीत के बारे में सुना हो या कभी पढ़ा हो, समझे हो, तो इसको बोलते हैं तिहाई। 3 बार होता है हमेशा। और वैसे भी हमारे हिंदू रिलीजियस फिलोसॉफी में 3 का बहुत महत्व है। त्रिदेव, त्रिनेत्र, त्रिशंकु, त्रिशूल, तो 3 की मात्रा बहुत ही हमारे लिए ऑस्पिशियस है। तो ये जब जो होता है तो उसको एंड ऑफ द जो भी पीस है उसमें रखा जाता है। उससे पता चलता है कि उसके आने से पता चलेगा कि ये जो यूनिट हो रहा है नाउ इट इज एंड पार्ट ऑफ दैट, अभी खत्म हो रहा है। सो दैट इज द फिनिशिंग पॉइंट। पर अभी उसको थोड़ा अलग फॉर्म में अभी करें, पूरा 4 साथ में मध्य गिनना तो गिनना 1 2 3 4 गिनना टिक कर टिक गिनना कर टू टिक गिनना है गिनना टू टिक गिनना कर टिक गिनना कर टू टिक गिनना एंड गिनना। इसमें आप देखेंगे जो फुटवर्क है वो सब तो चल ही रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है शरीर का टॉर्सो, वेस्ट। यू हैव टू यूज योर वेस्ट, अदरवाइज इट इज वेस्ट। तो कलर भी कैसे करते हैं, अगर इसको नहीं इस्तेमाल किया तो कैसा होगा? लग रहा है ना कुछ अजीब? थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा। तो सही भी क्या है, गलत क्या है, वो रोज बताएंगे आपको। अच्छा, अभी आडू जो है इसको कहते हैं उदित मैटर। उसमें सबसे बड़ा क्या है, जो भी सारी मूवमेंट होगी उसमें कॉमन फैक्टर एक है, यू हैव टू जंप ऑलवेज ऑन द टो एंड स्टैम्प, टो एंड स्टैम्प। तो पूरा कुछ क्षण के लिए पूरा शरीर का वेट सिर्फ टो पर रहता है। और वो करना कितना मुश्किल है, कितना कठिन है, कितना स्ट्रेनियस है, इनसे पूछो वो बताएंगे कैसा है। तो शुरू में जैसे हमारी रुकी बोल रही थी, गुरु जी ये तो कभी नहीं होगा, नहीं हो रहा है, क्या करूँ? तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा धीरज रखो, आ जाएगा। तो ऐसे करते 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 बेसिक जो मूवमेंट है वो 5 है उसको। अब हम 5 हो आपको एक साथ में करके दिखाएंगे आज, पूरा एक साथ। तो उदित मैटर, मध्य लय, ऑल टुगेदर 1 2 3 4 3
3 बार किया जाता है और उसको इंडियन म्यूजिक में कहा जाता है तिहाई। जब कोई एक चीज़ को 3 बार हम रिपीट करते हैं, और इट कैन बी 3 into 3 times, तो 3 into 3। तो अगर नॉर्थ इंडियन स्टाइल में उसको बोलेंगे तो वो चक्रधार हो जाता है, चक्रधार तिहाई बन जाती है। तो अभी जो हम आप बताने जा रहे हैं इसका नाम है तरी की तो। तो जैसे गिरना तुम बताया था, वेस्ट से पूरा उपयोग होता है। अगर ठीक से नहीं किया तो आप बैलेंस भी जा सकता है, गिर भी सकती हो, स्लिप भी हो सकती हो। उसका पूरा उल्टा ये मूवमेंट है। वो पहले सामने से पीछे होता था, अभी ये पीछे से सामने की ओर होता है, पूरा उल्टा है। 1 मध्य 1 2 3 जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि कोई भी भाषा की शुरुआत होती है तो उसके मूलाक्षर जिसको बोलते हैं अल्फाबेट्स। तो अभी ये सारा आपने जो देखा अल्फाबेट्स है। अभी अक्षर के बाद एक वर्ड जब बनता है तो अभी छोटे 3 पीस हम आपको दिखाएंगे। तो अलग अलग मूवमेंट जब कंबाइन करते हैं पर्टिकुलर ताल में, उसकी निश्चित मात्रा के समूह में, तब जाके वो एक यूनिट बनता है। तो वो हम आपको 3 यूनिट अभी दिखाएंगे। और उसके बाद जब कृति में जब परिवर्तित होता है तो पहला कृति कौन सा होता है, कैसे होता है, वो हम आपको बताएंगे। उसके बाद हम इंटरेक्शन सेशन हो जाएगा। तो पहले सिर्फ सीधा मध्य, सिर्फ ओनली 3 टाइम्स। 1 2 3 ये दूसरा गया, वो डिफरेंट मूवमेंट को जोड़ दिया। अभी और बढ़ेगा और उसमें ऐड होता जाएगा। जैसे अल्फ़ाबेट्स इंग्लिश के 26 अक्षर है, तो रैंडमली कोई भी आ सकता है A to Z में, उसको जोड़कर फिर एक वर्ड बनता है। सेम वे अभी ते यूं तक तक ते ते 1 2 3 4 ते यूं तक तक ते 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 यूं तक अभी ये चीज़ अभी इस चीज़ को हम स्वर के साथ भी जोड़ सकते हैं। इसमें गाना भी आ सकता है, हमारे जो क्लासिकल रागा है और रागा के नोटेशंस भी इसमें हम डाल सकते हैं। अभी ट्राई करो, अभी जो किया वही करो, बोलकर करो, क्योंकि मैं बोलूँगा नहीं, मैं जाऊँगा स्वर के साथ। ठीक है? जहाँ मैं शुरू करता हूँ वहीं वो शुरू करते हैं, और जहाँ मेरा खत्म होता है एग्जैक्ट वहाँ पर ही खत्म होता है। जिसको बोलते हैं म्यूजिक की भाषा में, ताल की भाषा में, शम से शुरू करना, शम पर खत्म होता है। हम दोनों अलग अलग शुरू करते हैं, उनका मैथमेटिक्स अलग है, मेरा अलग है, और साथ में ऐसे शुरू होना चाहिए। वो अलग अलग रास्ते पर जाए लेकिन एक ही समय पर एक ही जगह पर वापस हम इकट्ठा हो जाए। दैट इज कॉल्ड मैथमेटिक्स, आर्टिस्टिक मैथमेटिक्स। स्कूल में कॉलेज में मैथ्स नहीं पढ़ना है, वो ऐसा होता, पर यहाँ को हाँ अभी और पढ़ना है। तो उस सेक्शन में अभी हम और एक तीसरा बनाते हैं, तेही लास्ट वाला। अभी जो आपने देखा 2 मूवमेंट पहले देखा, उसमें फिर ऐड होकर 3 मूवमेंट जुड़ गया, अभी अभी 3 से ज़्यादा जुड़ रहा है और जाके एक यूनिट बन रहा है। तो उसको भी हम 2 तरह से वापस करेंगे। पहले ऐसे बोल के साथ फिर वापस में स्वाद तो पकड़ के रखना है,
अंतरा मैं डाल रहा हूँ उसको। 1, ठीक है। 1, 2, 3, 4 सा रे सा रे सा नी ध प म प द सा नी ध प म ग रे सा सा प म ग प द रे सा नी ध प म प द सा। इसी के साथ हमारा डेमोन्स्ट्रेशन ये रखूँगा। अभी उसके साथ इसके बाद जो पहला आइटम बनता है वो कैसे होता है तो हम दिखाना चाहते हैं, पर उसके पहले मैं जरा इनसे इनका परिचय करा दूँ। अंतरा ये 3 तो आपके रिफाइनरी परिवार के ही सभ्य हैं और अभी पूर्वा परिवार के भी सभ्य हैं। तो ये है नुकी मणिदास, इसकी इनिशिएटिव की वजह से आप लोग आज ये देख पा रहे हैं। और वंदना वो भी आपका रिफाइनरी परिवार का एक हिस्सा है सभ्य और मेरी विद्यार्थिनी है। अंतरा वो कुछ समय से सीख रहे हैं, ये लोग अभी इनको 1.5 साल तकरीबन हो गया और इनको 6 महीना जैसा हुआ। और ये जो हमारी शिष्या है शिवानी शाह, शी इज़ अ लेक्चरर इन द यूनिवर्सिटी and her subject is science. So she is teaching a science subject. तो ये परिचय हुआ। और आप मेरी सबसे पुरानी शिष्या को तो जानते ही हो, इसका नाम है रश्मि कुलकर्णी। तो पहले MS यूनिवर्सिटी में कॉमर्स फैकल्टी में लेक्चरर थी, उसके बाद छोड़कर अभी अपना खुद का एक सेटअप है और जो काम कर रही है अभी वो बहुत ही सुंदर काम कर रही है। तो आज की एक बहुत बड़ी समस्या है कि बच्चों को 10-12 के बाद कौन सी दिशा में जाना, वो दिशाहीन होते हैं। तो सब्जेक्ट काउंसलिंग उसका मेन अभी काम है। और जैसे उन्होंने खुद ने बताया था, मेरे साथ 25 साल से हर जगह परफॉर्म कर चुकी है। तो ये हमारी शिष्यागण है और आप सबने इनको देखा है, पर आज उनका एक नया अवतार आपको देखने मिल रहा है। तो और बाकी की बातें करते रहेंगे। एक छोटा सा एक आइटम बता दूँ, अभी वो क्या आइटम है क्या है वो तो मैं बताता हूँ, लेकिन कौन करेगा ये वो तो सब हट जाएंगे। तो कैसे होगा तो ये शायद रश्मि बता देगी क्या है कैसे करेंगे। अभी तक आपने जो देखा, जैसे अलग अलग सर ने जैसे कहा था कि हम अल्फ़ाबेट्स से वर्ड्स तक पहुँचे। अब हम देखेंगे सेंटेंस मतलब पूरा तो पूरा, अगर से पैराग्राफ अगर मैं इसको कंपेयर करना चाहूँ तो जिसको हम कहते हैं अलारिपू फर्स्ट आइटम या पहली कृति होती है। जब भरतनाट्यम की बात करते हैं तो एक मार्गम होता है। मार्गम मतलब एक ट्रेडिशनल सीक्वेंस ऑफ आइटम्स, ठीक है। एंड इसको मार्गम क्यों कहा जाता है कि भगवान तक पहुंचने का ये मार्ग है। सो दैट्स हाउ इट गोज। प्लस जो मार्गम बना हुआ है वो इस तरह से है कि शुरुआत में प्योर डांस फॉर्म, फिर धीरे धीरे करके उसके ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आइटम्स, फिर आता है थोड़ा बहुत अभिनय, फिर सिर्फ अभिनय, फिर क्लाइमैक्स जिसके अंदर स्पीड भी बढ़ता है, अभिनय भी कॉम्प्लिकेटेड रहता है, कॉम्प्लेक्स रहता है। तो आज जो हम देखेंगे ये देखेंगे अलारिपू। बहुत सिंपल कृति है लेकिन उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंट्रिकेट डिटेल्स भी हैं। एंड जब आप देखेंगे तो हैंड मूवमेंट, फुट मूवमेंट, आई मूवमेंट, म्यूजिक, ताल, सब चीज़ इसके साथ आती है। अगर मैं कहूँ तो इफ आई कैन टेक अ मिनट टू एक्सप्लेन, आजकल के बच्चों के साथ जब हम बात करते हैं कि बच्चे बहुत सारी चीज़ें एक साथ करना चाहते हैं और वहीं पर कहीं कहीं बिकॉज हमारी भी एक्सपेक्टेशंस ऐसे हैं, दुनिया भी ऐसे है कि एक सिर्फ पढ़ाई करने से नहीं, तो हम चाहते हैं कि और भी कुछ चीज़ें डेवलप करें। तो एक साथ बहुत सारी चीज़ें जब करने जाते हैं तो वो प्रेशर बढ़ता है, वो स्ट्रेस बढ़ता है। जब हम इस तरह का कोई डांस सीखते हैं तो क्या है, हम एक साथ बहुत सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है। सो फुटवर्क भी होता है, क्या बोल रहे हैं वो सुनते भी है, अपना कैलकुलेशन होता है, अपने हाथ का पोजिशनिंग या पैर का पोजिशनिंग होता है, उसके साथ साथ गाना जो बैकग्राउंड में चल रहा है। So not getting distracted but still bringing it together, and that's the beauty of this dance that you will see right now, which is called Alarippu. उसका लिटरली जो मीनिंग है वो भी मैं आपको समझा दूँ तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। जैसे अभी भगवान को हम अभी पूजा अर्चना करते हैं
तो हम फ्लावर जब ऑफर करते तो फ्लावर होता, इट्स नॉट अ बर्ड, कली नहीं होती है, कली कभी हम उसको ऑफर नहीं करते। जब उसमें से ट्रांसफॉर्म होता है और जब फूल बनकर खिलता है, कली जब खिलती है और फूल बनता है, दैट वी ऑफर टू द गॉड। तो जैसे आपने अभी देखा कि सारी बेसिक मूवमेंट्स ख़त्म हो जाती है, उसके बाद जब पहली बार जो कलाकृति सीखते हैं, इट इज़ नोन एज एन आलारिपू। इट इज़ एन तमिल वर्ड। आला इज अ ब्लोसमिंग एंड पू इज़ अ फ्लावर। जो फ्लावर बना है तो नर्तकी अपने आप को एक फ्लावर समझकर अपने आप को प्रभु को समर्पित करते हैं। क्या आपकी आशीर्वाद से, मेरे गुरु के आशीर्वाद से, मेरे माँ बाप के आशीर्वाद से मुझे कुछ सीखने को मिला, तो ये अभी मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। आप शायद सीखी हुई है ना? चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अभी ये सब जो हो रहा है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा ये शी इज़ माई वाइफ नीरू पंड्या। वो भी हमारे साथ में ही नृत्य सिखाती है और जैसे ट्रैवल किया है, परफॉर्म किया है, वो सब भी किया है। सो बैकबोन ऑफ क्यूबा यू कह सकते हैं, मेरा फैमिली का और मेरा तो है ही है, लेकिन हमारे इंस्टीट्यूशन का भी। सो उन लोगों के साथ में हम लास्ट में हस्त मुद्रा आपको दिखाएंगे ये खत्म होने के बाद। तो वो भी आपके साथ हस्त मुद्रा भी आपको दिखाएंगे, क्या साथ में करेंगे। तो आलारिपू के बारे में हमने जो बताया वो भी आपको दिखाएंगे। जैसा कि हमारे गुरुजी ने बताया था, सारे बेसिक अडबूस को मिला के हम लोग एक
नृत्य प्रकट करते हैं पूरे ऑडियंस के सामने। इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द बेसिक अडल्ट। इसमें आपने देखा होगा जो हमने गिनना तोम किया था, तिहाई जिसको गुरुजी ने बताया था, वो भी इसमें इन्वॉल्व था। ता हत जम तरी ता भी इसमें था। तो बेसिकली ये हमारे गुरुजी का यंग वर्जन है। आप सबने पहचान लिया था वीडियो में? या सबने, जिन्होंने भी पहचाना था वो हाथ खड़ा कर दीजिए एक बार। सबने पहचान लिया था। चलो अच्छा है, मेरा उस समय बात था, अभी बात नहीं, फिर भी पहचान लिया। थैंक यू सो मच। बट आपको एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी, जैसा ये इनके बॉडी में जो इनबिल्ट इन्होंने सीख के टाइम किया था ना, वैसा ही अभी भी गुरुजी करते हैं। हमने इसका 2021 सितंबर 5 को इसका हमने विटनेस भी किया था। आप अगर ये डांस फॉर्म एक बार आपको आ गया ना, तो एट एनी एज यू कैन परफॉर्म इट। एंड वी हैव सीन गुरुजी परफॉर्म ऑन 5 सितंबर 2021। हालांकि आज तो गुरुजी नहीं कर पाएंगे टाइम की कमी की वजह से, बट आज भी गुरुजी उतना ही अच्छा कर लेते हैं। और गुरुजी ने अभी रिसेंटली 2019 में ब्राज़ील में भी परफॉर्म किया था, तो काफ़ी उनको प्रोत्साहन, मतलब बाकी सारे कंट्रीज़ के लोगों ने जितने भी परफॉर्मर्स आए थे सबने उनको काफ़ी अप्रिशिएट भी किया था गुरुजी। तो अभी मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग इसकी वैल्यू को समझें। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी है, तो आप लुकी मैम मुझसे या फिर गुरुजी से सीधा डायरेक्ट फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं, आप मिल भी सकते हैं उनसे। एंड हमारा एक मेरे तरफ से मुझे ये कहना है कि हमारा एक कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हमें अपनी नेक्स्ट जनरेशन को ये पास ऑन करना चाहिए, बिकॉज ये हमारा कल्चर है, ये हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। तो हम सिर्फ भरतनाट्यम या कुछ भी, कथक हो गया, भरतनाट्यम हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, ओडिसी हो गया, ये हमें कुछ ना कुछ एक चीज़ हमें पकड़ के रखना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आप लोग को जैसा भी ठीक लगे उस तरह से आप हमें रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, कोई डाउट्स है वो भी पूछ सकते हैं। सो अभी हम इंटरेक्शन सेशन स्टार्ट करेंगे, एक प्रेजेंटेशन डिस्प्ले करेंगे, उसके बीच में कुछ भी आपको पूछना है, इंटरेक्ट करना है गुरुजी के साथ, तो आप लोग पूछ सकते हैं। अंगूठा मेरा थंब यहाँ पर है। हाँ, वो अगर वो अलग जगह पर चला गया तो पूरा बदल जाएगा। फिर बैंड योर लास्ट फिंगर अर्ध पकड़ा, फिर अभी थंब को जोड़ना है और दोनों फिंगर ओपन अप करना है। फर्स्ट फिंगर, इंडेक्स फिंगर विल गो बैक एंड सेकंड विल बी इन द फ्रंट। कोनी उठा, एल्बो, हाँ, इट इज कॉल्ड कर्तरी मुखा। फिर ये ऐसे उंगलियां जोड़कर, ऐसे कुछ भी नहीं, फिंगर्स टुगेदर, इट इज कॉल्ड मयूरा। फिर अर्धचंद्र, आपको नहीं देखना है, मुझे दिखाना है। Turn your wrist to me. Fingers join. Yeah. ऐसे, ऐसे। ये आपको तो पता है, लेकिन दूसरों को बताना है तो क्या है उसमें? ये ठीक है। अच्छा, अभी आप ये इतना अभी पहला मूवमेंट सबसे पहला, जैसे बच्चों को सिखाना है ना, ए ए ए ए, वो पहला वाला हम आपको
थोड़ा सा ट्राई करो, दो पैर के बीच में युक्त कैसे? तो पहले राइट लेग मारना है, फिर लेफ्ट मारना है। वन कटर आगे अंदर हो जाएगा। 1 2 3 4 राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट ए या कितना तक ए या सेकंड स्पीड राइट लेफ्ट राइट एंड राइट। ठीक है, ये सबसे पहला ए है। ए कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, ये मैं तो हूँ ही हूँ, लेकिन जो इम्पोर्टेंट वो मैं हूँ वो नहीं है, इम्पोर्टेंट जो मेरे बैकग्राउंड में वो है। हमारे सारे जो भारतीय नृत्य है उसका जन्मस्थल रहा है मंदिरों, तो मंदिरों में से आई हुई ये कला है, इसलिए आज भी इसमें पूजा अर्चना, भक्ति भाव और आध्यात्मिक मीन्स फिलोसॉफी उसका एक सबसे बड़ा महत्व रहा है। ये भी बात अच्छा, अभी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, आर्किटेक्चर्स हैं, तो पहले इतने अच्छे से बना, अभी पूछो, तो उसका भी एक महत्व है क्योंकि हमारे बहुत सारी चीज़ें कलाएँ जो बीच में लुप्त हो गई थी वो मंदिरों के परिसर में स्कल्पचर्स में वो सब बची पड़ी थी, और उसकी रचना भी ऐसे होती थी कि हम उसको समझ सके, सुन सके, क्योंकि उस ज़माने में माइक्रोफोन नहीं था, साउंड सिस्टम नहीं थी, तो कैसे होता है। तो अभी हमने ये पिछले 2 साल पहले इसको एक्सपेरिमेंट किया, आपको दिखेगा, मुझे पास में जाकर बताना पड़ेगा। माई सन-इन-लॉ इज ऑल्सो भरतनाट्यम परफॉर्मर एंड टीचर, माई डॉटर इज ऑल्सो परफॉर्मर ऑफ भरतनाट्यम एंड ओडिसी। तो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था, आपको समझ में आएगा कि साउंड पहले कैसे पहुंचता था, तो हमने लाइव उसको किया था। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो परफॉर्म करने के लिए तैयार खड़े हैं, और मैं दूसरे वार्ड में बीचों बीच जाकर मैं खड़ा हूँ, और वही जो अभी आपने मेरा परफॉर्मेंस देखा अलारिपू, वो अलारिपू हमने वहाँ पर लाइवली परफॉर्मेंस किया। तो वही देखने के लिए कि आर्किटेक्चर जो हमारा पुराना था मंदिरों का, तो कैसे काम करता था, क्योंकि उस समय तो अंदर ही होता था मंदिरों में। तो ये बहुत ही दूर हम खड़े हैं और वो अलग बहुत नीचे लेवल में जाकर वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये मंदिरों की कला थी, तो हमने सोचा कि उसको एक बार मंदिरों में जाकर उसका अनुभव किया जाए। नेक्स्ट, अभी जैसे आप देख रहे हो पैंडेमिक सिचुएशन में बहुत सारे चैलेंजेस रहे, हमें बहुत कोरोना का तकलीफ, बहुत सारी चीज़ें हुई, और हमारे ये जो विद्यार्थी हैं तो इसमें लुकी भी, वंदना भी और शिवानी, ये लोग भी कोरोना से बाहर निकल चुके हैं, और उनमें से बाहर आने में क्या डांस ने कितना महत्व का इम्पोर्टेंस रोल प्ले किया है, वो तो इनसे बात करेंगे तो पता चलेगा। उसी दौरान पूरा हम लोग में मेरे जो विद्यार्थी हैं अब्रॉड में अभी भी है, पहले भी थे, और जब 2019 के बाद मतलब 20 से हमारे लिए एक नया शब्द एक फैशन में आया हमारे लिए, ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन अभी ये ऑनलाइन चीज़ें तो मैं कितने सालों से कर रहा हूँ, तो जो उस समय एक ही प्लेटफॉर्म था स्काइप पे, उसमें हम पूरा कंडक्ट करते थे। तो ये ड्यूरिंग दैट पैंडेमिक सिचुएशन सो मच गो ऑन, चलना ही चाहिए। अब ये सारे विद्यार्थी जो जुड़ रहे हैं तो देख रहे हैं, जो परफॉर्मेंसेस हो रहा है, तो सारी चीज़ें ऑनलाइन जब होती है तो है। नेक्स्ट, यही जो हम क्लासेस में जो कंडक्ट करता हूँ यहाँ से, अमेरिका, ब्राज़ील है या फिर मॉरिशस है, वो सारे उसका एक आपको ग्लिम्स दिखा रहे हैं। नेक्स्ट, आगे वही चीज़ें हैं, और जैसे देखा है कि मंदिरों से आई हुई कला है, वही चीज़ हम जब स्टेज पर करते हैं तो वही ऑफर करना, प्रभु को पूजा अर्चना करना, वो सब थोड़ा सा दिखाने की हमने कोशिश की है। और आप जो ऊपर पिक्चर देख रहे हैं वो जो अभी मैं कंडक्ट कर रहा था, तो क्लासरूम में अलग से होता है, स्टेज पर जाकर अलग से होता है। इंस्ट्रूमेंट आप मेरे हाथ में देख रहे हैं वो अलग से होता है। नेक्स्ट, आप ऊपर देख रहे हैं जो
ड्यूरिंग द प्रोग्राम्स जो हम कैसे कंडक्ट करते हैं, हमारी ऑर्केस्ट्रा कैसे होती है, और साइड में जो देख रहे हैं वो क्लासरूम में हमारा टीचिंग कैसे होता है, किस तरह से सिखाते हैं, जो अभी आपने देखा वही है। और नीचे जो कुछ नृत्य सभा जैसे हम करते हैं वो है, और उसके बगल में जो एक ऑरेंज साड़ी में जो दिख रही है दिखा रहा हूँ, वो अमेरिकन स्टूडेंट है, कैरोल कैस्ट्यूअर, वो न्यूयॉर्क से आई हुई थी। चलिए मैं ये थोड़ा सा बोल देता हूँ। In 2017, for the contribution in the field of classical dance, indigenous art of India, वो जो मेरा लाइफ है उसको मैंने कंट्रीब्यूट किया है, समर्पित किया है कला को, तो उसको रिकॉग्नाइज करते हुए यूएसए की यूनिवर्सिटी ऑफ इंटरनेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूमन साइंस एंड पीस करके जो यूएसए में है, उन्होंने मुझे ऑनररी डॉक्टरेट ऑफर किया। सो नाउ आई बिकम नोन एज ए डॉक्टर शरद पंड्या।